Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you on this lovely day. We are going to discuss what's the way forward for markets after what happened on 23rd of July. And uh, what I suggest is that please take a pen and paper. There are a lot of interesting people on this panel who've made supernormal wealth, not only for themselves, but also for all those who follow them. Yeah. Just one line each about the panel. Dhirendra Kumar is perhaps the first and last word when it comes to mutual funds. And he's had a very long association with Business Today way back in 1992. He used to write a column called Fund Monitor for the magazine. And that's morphed into valueresearchonline.com. About 5 lakh people on a regular basis look up to Dhirendra to make long-term capital wealth for him, for themselves. Then we have Kedia साहब. जितनी बात आप तारीफ करें केडिया साहब की उतनी कम है. बाजार में मृदुलता और मिठास और म्यूजिक अगर कोई इंसान बहुत अच्छे पैसे कमाने के साथ साथ घोल रहा है तो वो हैं केडिया साहब. और मदान साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. आप एक बहुत बढ़िया ब्रोकरेज के को हेड हैं और जेएम फाइनेंशियल के साथ साथ पिछले 25 साल से बाजार से जुड़े हुए हैं. तो साक्षी, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया, लेकिन पहला सवाल आप लेंगी. बिल्कुल, पहला सवाल मैं लूंगी and I'm sure this is one space that everybody is interested in. I think the biggest headlines that came out of the budget was all about the higher taxes in stock markets, and everybody got talking about them because most of us were surprised with this measure that was taken in. But let me start with you, Mr. Kedia, and ask you to describe in 2 lines what was your first reaction when the finance minister announced higher taxes, and then just about 72 hours later, we saw the stock markets rally to all-time high levels again. It took just 72 hours for us to come back. Recovery started just the same day, but just 72 hours, and we are back at record high levels. And what lines came to your mind right after that? So since you said to describe in 2 words, so 2 words came into my mind, bach gaye. Because I was expecting, because government has been telling since last 2 years, that they want to put all the financial asset class in one category, in one slab. Okay, so I was expecting maybe they may raise the capital gain tax to 20% or maybe 15%. आप ज़्यादा expect कर रहे थे? In fact, I am telling you, this is what I had told in one of my interview before the speech. कि मेरे को लग रहा है कि ये बढ़ाएंगे और टेनर भी बढ़ा देंगे और ये भी बढ़ा देंगे. तो उन्होंने बचा दिया कि टेनर नहीं बढ़ाया कम से कम इन्होंने. और देखिए, इंडिया को आपको देखना पड़ेगा ना, सारे एसेट क्लास को. खाली शेयर बाजार के कारण आप पूरी इंडिया को एक पेंट के अंदर में नहीं कर सकते हैं. आपको यहाँ पर गोल्ड भी है, यहाँ पर सिल्वर भी है, यहाँ पर रियल इस्टेट भी है, इंटरेस्ट रेट भी है, सब कुछ है यहाँ पे. और सबका साथ सबका विकास. जो बच्चा कमाएगा वही टैक्स देगा ना. तो मेरे को तो ये लगा कि बच गए, 12.5% लगाया, बहुत अच्छा. मेरे को, मैं तो बहुत खुश था. धीरेन्द्र जी, आपकी राय लेते हैं. When you saw the budget document, and of course you are in the business of creating super long-term wealth with the least amount of effort put in, what do you think are the 2 or 3 main ideas behind this budget as far as investors are concerned? Is this a place where there is so much of money being made, therefore paying a little more tax is not a problem? Or is this something that we should be mentally prepared for? Get taxed on equities at the rate at which we pay tax? No, it is primarily, the government is a witness to, savers money moving from banks to market-linked investments. And when you earn interest, that is a taxable income. When you earn appreciation by way of investing in a market, by way of capital gains, it was not it was tax-free just 4 years back. Then it became taxable, and now it has become a revenue stream for the government. And as the scale grows, government is eyeing it as a meaningful vehicle from which it can realize that. But there are ways in which you can configure yourself. Look at it. There is one beautiful thing which happens. Your long-term orientation, all the market-linked investment, nobody can tax you the appreciation which you haven't realized. Correct. Mr. Kedia is wealthy primarily because he has not sold all the things which has appreciated 100 times and you haven't sold. You will be liable for the tax only when you realize some gains. So it is a tax deferral vehicle. Mutual fund is even a step further. When you invest in a mutual fund, the fund manager is doing all the gymnastics. But you are not liable to pay taxes till you sell your mutual fund.
Absolutely. So it is a actively managed, or it's a managed vehicle. Likewise, and in fact, the only problem of mutual fund is that you move from equity to debt or one fund to another, it is taxable. We have another vehicle which has come up, which is completely tax deferred. You invest in the tier 2 of NPS, which is almost like a mutual fund for individuals. Move your money 4 times in a year from equity to debt to government security to, and it's almost comparable with mutual fund, the equity plans. Even the alternative plans which is not available. And it is a tax sheltered account. So in that sense, we dislike taxes, and particularly I dislike capital gains tax because principally, if you recall, the Kelkar committee report, capital gains is reflection of the corporate earnings, which I haven't realized. I invested in a company. I will just cite you one example. I used to run a limited liability partnership, LLP, till last year. Now that LLP will sell a product, will incur some expenses, the profit that it makes will be taxable, and it will pay the taxes. And me being a partner in that LLP, all the money that will come to me is completely tax-free because once I have paid the taxes, I think of shareholders as a partner in a business, more so a long term. And the company has paid the taxes when it has, conducted a business, earned a profit, paid taxes, and when I realize again, it is basically transferring my ownership to change it. Maybe government can do whatever it wants to, that you're defining the character, but this is something where if I own the shares of a private limited company or a public limited company and I'm selling the shares, my appreciation becomes, taxable, which I don't think is that the case there. Here I look at appreciation as a reflection of the earnings equivalent worth of a company. Mr. Madan, आपसे पहला reaction लेते हैं. Mr. Kumar is not appreciative of the capital gains tax. What was your first reaction, first of all? And was it necessary for the government to really introduce higher taxes this time around? Plus, I'm adding one more question, something which I asked even Mr. Keria earlier. The way the markets have reacted and recovered, will it encourage the government to put more taxes on markets again and again, year after this reaction? See, I think this is the buzzword. This taxation, capital gain tax is the buzzword post-budget. But I'll tell you, there are two different buckets. As an individual, as a salaried person, I was not happy about it. As a real estate owner, probably Shell was not happy about it. I mean, I'm generally giving example. But suddenly you realize what is wrong with the capital market. We are investing in the capital market, like Dhiren said, the capital market, the markets are reflection of the corporate earnings and how good and bad they are doing. Was there anything bad in the budget for them? We are investing in the market, in the stocks, which is a reflection just because my personal mood is bad or his personal mood is bad, suddenly there was a negative vibe that the budget is not good for the market because of the personal taxation, which is directly because of the capital market, the capital gain tax and STT. So that is where I think somewhere people got confused and suddenly there was a buzz, the vibe was negative. But otherwise, I think sooner than expected, the market realized that there's nothing wrong with the market. I go to the market, like KDRG said, to make money. I mean, if you recently look at the reports, day before yesterday, the cash market report has come from SEBI, and earlier there was a derivative report that 70% people are losing money. When the challenge is losing money or making money and paying tax, what is the challenge? What are we fighting for? Is it because of the loss we are concerned about or the profit? So I think if we are making profit, 10 or 12.5% will not make much of a difference. But that's anybody's guess. It could be. But what number will make a difference is what I'm asking. Abhi to 12.5% hai. Next year kya ho jayega pata nahi. See, honestly, no number will make a difference as long as there's enough liquidity and participation. Because the participation is something which is the key. See, the market dynamics, everything has changed. See, Sakshi, what has happened is we live in this market and we carry certain kind of baggage. I mean, all our psychologies, our research, our charts, our everything is based on, for donkey years when we were struggling to have 50 lakh demat accounts or 1 crore demat accounts. Now they are, 10 crores, 8 crores. The number has significantly gone higher. So every back testing will not work. So you have to unlearn something to learn new. It is because people who are carrying the baggage will not be able to adapt to this new change, that everything gets discounted and why. So there are so many interesting things. We are in very interesting times as far as market is concerned.
जी हाँ केडिया साहब, हुकुम। I have one data in 23 there were 5.5 5.5 crore account थे investors जो investors out of those 5.5 crore only 30 lakh people gave long term capital gain tax and 20 lakh people gave eligible for short term capital gain tax out of the 30 lakh के अंदर में ऐसे भी होंगे कि जिनका जो capital gain होगा समझिए 1 लाख का फ्री था तो 2 लाख का capital gain होगा। तो व्हाट आई फील कि हार्डली 1% आदमी जो होंगे ना जो साल 2 साल 5 साल के लिए शेयर्स को होल्ड करते होंगे शेयर बाजार के अंदर में। यहाँ ज़्यादातर 2 मिनट्स नूडल है अभी जो चल रहा है ना सर, ये 5.5 करोड़ आदमी के अंदर में जो 30 लाख दिया, बाकी के क्या है, ये 2 मिनट में नूडल बना के खा पी के जाके मार्केट से निकल जाते हैं। एक डेटा है कि 25 मिनट जो होल्डिंग पीरियड है फ्यूचर के अंदर में वो 25 मिनट है। ओके, यह डेटा आपको डेटा मिल जाएगा आपको कि 25 मिनट होल्डिंग पीरियड है। तो किसको, उनको तो खुश होना चाहिए कि अच्छा हुआ हम तो 30% देते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, इनको भी लगा 10 का 12.5 लगा, दे शुड बी हैप्पी अबाउट इट। चलिए केडिया साहब ऐसा करते हैं, क्योंकि आप लंबी अवधि से कुछ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के रिटर्न्स कमा रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए इस बजट की वजह से कोई ऐसी तब्दीली आपको बाजार में आती हुई दिखी हो जिससे कोई परेशानी होगी लॉन्ग टर्म स्टॉक पिकिंग में, या वो वाला जो हाल है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है? और यहाँ पे 3 या 4 5 ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से आपको लगता है यहाँ से भी आपको बाजार में अच्छे रिटर्न आते हुए दिखेंगे? तो पहले तो ये है जी कि जब बसंत आते हैं तो हर तरह के फूल खिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी मार्केट के अंदर में ये जो भी आपने बोला मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा नहीं रहा हूँ, ये हो रहा है, ठीक है। ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा खाली इतना सा योगदान है कि मैंने जो शेयर्स लिए हैं, जैसा सर ने बताया अभी, मैं वो लेके बैठा हुआ उन शेयरों को, मैं लेके भूल जाता हूँ शेयर को, जो इस तरह से है कि अगर अच्छी कंपनी इन्वेस्ट किया और मैं कब बेचूंगा, कौन से प्राइस में बेचूंगा, कौन से साल में बेचूंगा, ये कभी मेरा टारगेट नहीं रहता है। तो इस बोल कर जब हवा चलती है तो फिर अपने को भी उसका थोड़ा सा फायदा, सुगंधी आ जाती है, तो ये इतना ही फर्क है। और जहाँ तक आपने ये पूछा कि आगे क्या संभावना क्या है, एक मैंने ये इनसे ज़्यादा कोई इंडिया में बता नहीं सकता इस बात को, somebody told me day before yesterday कि 1.25 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के पास में कैश है। आप उसको शायद बताइए, 1.25 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के पास में कैश है। हम कौन सी तेजी की बातें कर रहे हैं, माने कौन सा हम बात कर रहे हैं कि, तो ये जो हम बात करते हैं ना, मार्केट में एक ही डर लगता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये पॉकेट्स के अंदर में है। पूरे मार्केट में ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट में, ये खाली डर लगता है फ्यूचर ऑप्शंस का, डर लगता है यूफोरिया का। लेकिन कई कैश के ऐसे शेयर्स होंगे जो ऊपर से 20% 30% रिएक्ट हो चुके हैं जी, और जो यूफोरिया जो लगता है वो कुछ पॉकेट्स में है, जैसे समझिए डिफेंस के समझिए, या पीएसयूज के वगैरह में। पीएसयूज में कई शेयर ऐसे हैं सर जो 80-90 के पी में डिफेंस के शेयर्स मिल रहे हैं। ओएमसी देखिए 10-12-13 के पी रेशियो में मिल रहे हैं आज के दिन भी। तो खाली पीएसयू को भी आप एक कैटेगरी में डाल नहीं सकते हैं इसको, मत। तो ये मार्केट बड़ा माने पागलपन में भी, ये जैसे बोलते हैं ना वो बंदर को नकल में भी अकल चाहिए, तो माने ये पूरा एकदम पागलपन नहीं हो रहा है, कुछ पॉकेट में हो रहा है। तो समंदर के जैसे, मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर बाजार समंदर के जैसे है, कहीं काम है, कहीं रफ है, कहीं बहुत तेज वो चल रहा है, कहीं एकदम डल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किधर खड़े। जी धीरेन्द्र जी, केडिया जी saying there's a method to the madness. बिल्कुल। धीरेन्द्र, आपने बहुत ही लंबी अवधि से बहुत ही लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न बनवाया है। अब बताइए आपके हिसाब से, हम लोगों ने पीएसयूज में पिछले 2-2.5 साल में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखा, लगभग 2.5-3 गुना तो इंडेक्स बढ़ चुका है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो क्या कहिए, क्या ये एक ऐसा ट्रेंड आपको आता हुआ दिख रहा है कि ये तब्दीली लंबी अवधि के लिए चलेगी, या यहाँ पर जो तेज़ी है उससे थोड़ा बच के रहें? पीएसयूज के बारे में मेरी बहुत सालों से यही धारणा रही है कि पीएसयू बहुत ही खतरनाक सेगमेंट है, क्योंकि किसी चीज़ की सरकार मालिक हो, ये अपने आप में सबसे बड़ा खतरा है। अगर गवर्नमेंट ओनर है किसी चीज़ की, हम टाटा कंपनी को प्रीमियम देते हैं, हम किसी और कंपनी को डिस्काउंट देते हैं, तो अगर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसी ओनर को देना चाहिए तो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि बहुत इराटिक है। लेकिन सरकार भी ये समझ गई कि ये हमें लोग थोड़ा हल्के में ले रहे हैं, कुछ हमें कंडक्ट करना चाहिए। तो आप देखिएगा कि सरकार 8-10 साल से पीएसयू के लिए सरकार का रुख बदला है। सरकार पहले बिल्कुल बजट के पहले लास्ट क्वार्टर में, जैसे हमारा टैक्स सेविंग सीजन आता है, उस तरह से अचानक डिसइन्वेस्टमेंट चालू हो जाता था। डिसइन्वेस्टमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो एक भारत 22 बॉन्ड ला करके बेच देते थे, एक पीएसयू सीपीएससी बॉन्ड लाकर, एक सीपीएससी ईटीएफ ला करके बेच देते थे। तो सरकार की हताशा में बेचने की वजह से
PSU स्टॉक्स की बहुत बदहाली हो गई थी। बाजार में बड़ा इनऑपर्चुन तरीके से, आप देखते होंगे कि कोई कंपनी का पब्लिक इशू आता है, उसके पहले प्रमोटर उसका बाजार बनाता है, कुछ रोड शोज करता है, जेम वालों के पास जाता है कि जरा कुछ बाजार गर्म कीजिए। यहाँ पे सरकार को जब डेस्परेशन होता था तो आकर के स्टॉक अपना बेच देती थी। और उस वजह से ये, अगर आप PSU के बारे में लोगों को थोड़ा ये ख्याल रखना चाहिए कि PSU में सुधार हुआ है, इनके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स इंप्रूव हुए हैं, PSU को थोड़ा बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि रातों रात बहुत सारे, पिछले 4-5 साल में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक गायब हो गए, मर्ज होकर के वो बड़ी एंटिटीज हो गई, उनका NPA का स्केल बिल्कुल अलग हो गया। तो ये कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। अब ये कितना बड़ा बदलाव है, कितना सस्टेनेबल है, लेकिन मेरी सलाह लोगों को यही होगी कि थोड़ा बहुत PSU भी आपके पोर्टफोलियो में हो तो अच्छा, कोई बात नहीं है, थोड़ा बारीकी से देखिए। आपके देखने का नज़रिया वही होना चाहिए जो किसी भी कंपनी के लिए होना चाहिए, कि कंपनी बढ़ रही है, पैसा बना रही है, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, या ये तुक्का है, और बहुत महंगा मत खरीदिए। राइट मिस्टर केडिया, जैसे अभी धीरेन्द्र सर बोल रहे हैं PSU स्टॉक्स के बारे में, आई लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू विच आर द थीम्स दैट विल रूल द स्टॉक मार्केट्स नाउ पोस्ट द बजट. वी हैव द बिग इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी पास्ड बाय. Will the previous performers, outperformers, defense, railways, PSUs overall, will they continue to outperform? Will we have to scout for newer themes, something that has not moved, IT, banking, FMCG, pharma, will they move now? Where are you going to be picking out the next multi-baggers from, because you are the king of multi-baggers? So I think whatever policy has been laid down by this government, like in infrastructure and all, I'm bullish in infrastructure for last 3-4 years. Because I had seen China, and whatever we are talking about 10 trillion economy or 30 trillion economy or 35 trillion economy by 2047, Amrit Kal jo hai uske andar mein. So one thing is very clear, without infrastructure, we cannot reach to $30 trillion economy in India. So I think that is the need of the hour. So government focus will always be there in infrastructure shares, infrastructure companies and all. And besides this, one more thing which is I am always, I am skeptical about is the unemployment. As you know that India needs 70-80 lakhs new job every year. And the people who are leaving the job, they also need replacement. So at least we need 1 crore job every year, So that only manufacturing has the potential to create that kind of job, because in services you cannot create 1 crore of job every year. So I think the government's focus is also there on this manufacturing and all. And thirdly, whatever government has, madam has, mentioned in a speech, like tourism and all. Yeah, there are 3 kinds of tourism, like either your tourism, your adventure tourism, or medical tourism, or religious tourism. So like this is what government is now focusing on this religious tourism and all, which is again a GDP enabler. And so I think besides these 3 sectors, we cannot become a 10 trillion or 20 trillion economy without every sector doing well. Only difference could be some animal is running at 150 km speed, somebody is at 50 km speed. But ultimately, it has to come from all the sides. केडिया साहब, आप जाने जाते हैं ना सिर्फ बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए, लेकिन जो सरगम है वो आपके गले और दिल दोनों में बसी हुई है. तो ऐसा करते हैं, आपके कुछ गाने हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उनसे बाजार इतनी आसानी से समझ में आ जाता है कि वो सुनते और देखते दोनों ही बनते हैं. तो उसके पहले जरा सा आप दरवाजा बंद कर ले, कोई चले नहीं जाए उठ के, थोड़ा सा कोई नहीं जाएगा सर. तो हमारे नीरज जी टीम में जुड़े हुए हैं, वो बहुत बढ़िया आपको केडिया जी की 2
के जहन में ये ट्यून आई गई होगी, तो 4 लाइनें आप यहीं सुना दीजिए। आधे से ज्यादा दुनिया में सॉलिड मंदी छाई है, इंडिया ही एक देश है ऐसा नई सुबह जहां आई है। सोच समझ कर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर करो निवेश, फ्यूचर टिप भंगार कैप से ऑलवेज तुमको होगा क्लेश। इंडिया का है जमाना, इंडिया का है जमाना। क्या बात है। आई हैव वन। मैं यहाँ अपने जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं उनके सफाई के लिए जरा मैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार आपसे ये गाना सुना था तो मैं किसी से पूछने गया था कि भंगार कैप क्या है। ये बम्बैया भाषा है, इसको पेनी स्टॉक Penny अंग्रेजी में stocks। कहा जाता है। और मैं क्या बोलता हूँ सर, हम लोग बोलते हैं ना जनरली देयर आर 3 कैप्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स। आई ऑलवेज से देयर आर 4 कैप्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स एंड भंगार कैप्स। सो एंड मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर इनटू दैट कैटेगरी ओनली। 6000 में से 4000 शेयर को And I'm भंगार कैप। sure how many times have you been asked कि सर कोई ऐसा एकदम पेनी स्टॉक बता दो जो कि कल मुझे रातों रात करोड़पति बना दे। मजे की बात है, सब लोग को मेरे को एयरपोर्ट पे मिलता है मैम, और मेरे को बोलता है अरे सर आपने क्या गाना लिखा, आप क्या गाना गाते हैं, और आप कितना बढ़िया आप मैसेज देते हैं पूरे हिंदुस्तान को, ये वो। सर एक छोटा सा शेयर बता दो मेरे को 4 रुपये वाला। तो मैं ऊपर नीचे से उसको देखता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मेरे को गाली दे रहा है कि कॉम्प्लीमेंट दे रहा है मेरे को। मदान साहब, आपसे चर्चा करते हैं क्योंकि आप एक ब्रोकरेज को देखते हैं, पीएनएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, और रिटेल में सबसे ज़्यादा हम सब में आप टच में हैं इस ऑडियंस से। बताइए क्या हाल है। रोज़ सुबह जब 9:15 पर लड़ाई शुरू होती है और 3:30 बजे ख़त्म होती है, उस दौरान किस किस तरीके के फ़ोन कॉल आते हैं? देखो, शायद सबसे बड़ी रिटेल ना अब मतलब जिसको हम तीसरी महाशक्ति बोलने लग गए हैं, इतना स्ट्रांग हो गया है और इतना बढ़िया हो गया है कि अब मुझे ना वो रिटेल, मतलब मैं एक सिमिली देता हूँ आपको कि मार्केट में हम जब पहले होते थे, आप भी बहुत पुराने हैं, केडिया जी भी हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले एक एमेच्योर सिग्नल होते थे, मतलब विद ऑल डू रिगार्ड्स, इट्स नॉट जस्ट एग्जांपल, व्हेन हाउसवाइफ्स किटी स्टार्ट फ्लोइंग इन द मार्केट, साइंस ऑफ ओवरबॉट और टॉपिश साइंस, और हर पान वाला जब मार्केट में आ जाए तब साइंस, मतलब ये सब एक नेगेटिव चीज़ें मानी जाती थी कि मार्केट का टॉप बन गया कि अब मार्केट में करेक्शन आने वाली है। अब आज हम उन चीज़ों को ही मतलब लेके वी टेक लॉट ऑफ प्राइड, यू नो, एवरी हाउसवाइफ इज इन द मार्केट, एवरी पान वाला इज इन द मार्केट। अगर मैं बॉम्बे में किसी टपरी पे चाय पीता हूँ और अगर वो टपरी वाला कहता है कि मैं आपको टीवी पे देखता हूँ एंड ही टेक्स ए सेल्फी विद मी, तो वो चीज़ अब वो पॉजिटिव हो गई है कि वो इन्वेस्टर बन गया है मार्केट के अंदर। तो वही जो रिटेल एक बार एक जिसको वीक लिंक माना जाता था या जिसके बहुत मैसिव तरीके से आने से लगता था कि दीज आर एमेच्योर साइंस, द मार्केट इज टॉपिंग आउट, अब वही रिटेल स्ट्रेंथ बन गया है। तो अब वो ये आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सर ये बताइए कि अभी भी खतरा बना हुआ है, अभी भी डर फैला हुआ है कि ये जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने सिर्फ बुल रन देखी है, कभी क्रैश आ गया तो भाग तो नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली, ये जो खतरे की बात है ना, यही हमारा बैगेज है, क्योंकि हमने 2001, 2007, 2011, 14 वो सब देखा हुआ है। वी आर ऑल old, I mean, in the market, so that is why that baggage is, I mean, holding us back, and the newer generation post-COVID has made lot of money, and everyone is, I mean, missing the bus. अभी भी सबको लगता है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत, so I don't feel कि बहुत हो गया. I mean, there's a long way to go, because I said that everything has been rewritten. The dynamics have changed. Just, I mean, as a broking का जो आपने Shell नाम बताया, मतलब mention किया, मैं आपको बताता हूँ, as a broker, we were all struggling. I mean, we used to present to those foreign delegates into 1995, 1997 that we have so many demat accounts. There's an X percentage of household saving in the market. What will happen if it'll double or triple, which is very easy. 97 same story, 2003 5 years same story, 2010 same story, 2015. For 20 years we kept on struggling and nothing happened. जो काम कोविड ने किया, मतलब जनरली से कोविड ने पुनर्जन्म कर दिया इस इंडस्ट्री का। एवरीवन एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री शुड थैंक कोविड, बिकॉज पार्टिसिपेंट, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, so they have had the best times of life. What COVID has done, nobody could do in this market since last 25 years. So I feel there's nothing to worry. Still, retail, there's a long way to go. Texture has changed, dynamics have changed for good, so there's nothing to worry. मेरे को ऐसा लगता है ना सर, जब पहले ज़माने में बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद में एक ज़माना आया 10 साल 15 साल पहले, रोटी कपड़ा मकान और डेटा। आप डेटा के बिना जी नहीं सकते हो। रोटी फिर भी आप डाइट करने लग गए, थोड़ा कम खा लोगे, कपड़े 4 सूट की बजाय 2 ही पहन लोगे, लेकिन डेटा तो सुबह से लेकर जयराम जी से लेकर आपको गुड नाइट तक आपको कोई ना कोई भाषा में चाहिए आपको।
तो अभी चौथा एक कल्ट और जुड़ गया सर कि रोटी कपड़ा मकान डेटा और शेयर्स। क्या क्या बात बात है, क्या बात है। अच्छा धीरेन्द्र जी, एक बार बताइए, हम सब लोगों में से सबसे ज़्यादा ग्राउंडेड आप ही हैं, और सिर्फ डेटा, सिर्फ अर्निंग्स और सिर्फ गुड क्वालिटी कंपनीज में अगर लंबी अवधि तक निवेश करना है तो आपको धीरेन्द्र जी को फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये समय आ गया है कि बाजार को नमस्ते कर दें? इतनी ज़बरदस्त हम लोग तेज़ी देख रहे हैं मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में। बीएससी का स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5 गुना बढ़ा है पिछले 12 महीने में। क्या ये एक बहुत ज़बरदस्त ओवर रिएक्शन है? क्या पूरा बाजार ओवर एक्सटेंडेड है? या आपको लगता है इसको किस तरीके से खेला जाए, इसको किस तरीके से इससे हम बहुत ही आसानी से पैसे बनाएं? सबसे पहले खेलिए मत जी, आपके लंबे समय का पैसा होना चाहिए। और आपके पास ये पिछले हम 4-5 साल से सुन रहे हैं, बल्कि मैं अगर कहूँ कि ये 2009 से हम लोग सुन रहे हैं कि बाज़ार काफ़ी गर्म है, ये जस्टिफाइबल नहीं है। एक चीज़ जो हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कंक्लूसिव तरीके से नंबर्स केवल पास्ट का होता है और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और जिस रफ्तार से कंपनियां बढ़ रही हैं और जो उसके अंडरलाइंग फैक्टर्स है, जो जीएसटी हुआ, जो डिजिटाइजेशन हुआ, एक 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई जिसके बारे में हमें पता नहीं था कि ये कंपनी चल भी पाएगी कि नहीं। जोमेटो, और लोगों का स्थिति बदल रहा है, लोग का आदत बदल रहा है, लोग खाना बनाने के पहले डिसाइड कर लेते कि मंगा ही लेते हैं। तो जिस तरह से बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से कंपनियां बदल रही हैं, पब्लिक सेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये गारंटीड तरीके से लूज करने वाली कंपनियां थी, वो अब अचानक पैसा बनाने लग गई हैं। एक बार मैं गुलाटी साहब की बात सुन रहा था जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम किसानों की आमदनी इतनी बढ़ा देंगे, और इन्होंने एक बहुत बारीकी से 5 साल पहले, 6 साल पहले एक बात बताई थी जो कि आज सच हो गई है कि सब कुछ इसमें ठीक ठाक है। केवल इस चीज़ को सफल करने में एक जो सरकार में कोई एंकर होना चाहिए, उसकी बड़ी कमी है। शायद मैं ये ठीक क्लैरिटी से ये बता पा रहा हूँ कि और स्टॉक मार्केट में इसका विपरीत हुआ। स्टॉक मार्केट में 2-3 बहुत बड़े बड़े एंकर आ गए। अगर आप देखिए कि इस सरकार के आने के बाद से क्या क्या चीज़ हुआ कि ईपीएफओ का पैसा बाजार में लगना शुरू हो गया। सेबी का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो इतना टाइटन हो गया कि आज म्यूचुअल फंड में मैं इतना भरोसे से बता सकता हूँ कि अगर कोई 2-4 रुपया इधर उधर कुछ कर ले तो जेल में होगा, इतना मुझे भरोसा है। और उसको डिज़ाइन ऐसा कर दिया गया है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते अगर आपके खाते से पैसा नहीं जा रहा हो, और उसका वापस आने का रास्ता केवल आपके बैंक के खाते में ही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लोगों को बड़ा तंग किया गया कि आपके इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी का नाम नहीं है, नॉमिनी का नाम डालिए, नहीं तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी कदम, कोई आदमी इसको बारीकी से देख रहा है कि ये आम लोगों का पैसा, और इसके वजह से जो भरोसा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में जब भी कुछ इस तरह का होता है तो बहुत सारे लोग, जैसे कहा जाता है कि जलेबी बनती है मक्खी आते हैं, तो उसी तरह से बहुत सारे लोग आपको घपला करने वाले आ जाते हैं। हर समय हर्षद मेहता, केतन पारेख, कभी रोज वैली, कभी कोई, और आके लोगों का पैसा लेके भाग जाता है। वो जो डिज़ाइन किया गया है, अच्छा अभी अगर आपके पास कोई भूला, मतलब मेरे जैसा आदमी जो पिछले 32 साल से म्यूचुअल फंड देख रहा है, अभी हाल में एक सुविधा शुरुआत हुई MF सेंट्रल, जिसमें कि सेबी ने ये प्रावधान कर दिया है कि आप अपना पैन नंबर डालिए और आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स एक साथ एग्रीगेट होके आ जाएंगे। तो अचानक मुझे पता चला कि 1995 में मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ था जो खोया हुआ था, मुझे अचानक बहुत अमीर होने की अनुमति करोड़ बन गए उसके। तो ये जो बाजार को सिक्योर करना है, एक आम आदमी को देखना है। उसके अलावा आप देखिए कि एनपीएस का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, एक चीज जो कि बाजार के लोगों मैंने किसी चर्चा में सुना नहीं, सरकार ने एक प्रावधान किया है कि अभी तक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 10% हो सकता था, अब वो 14% हो सकता है। और कॉर्पोरेट सेगमेंट एनपीएस का बहुत बड़ा है, जिसमें अधिकतर पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। तो आप सोचिए कि 14% अगर लगने वाला है 10 से बढ़ करके, तो वो इक्विटी एलोकेशन कितना बढ़ने वाला है, और ये पैसा 30 साल के लिए आता है। अगर आपको ध्यान हो कि पिछले 20-30 साल से जब भी बाजार चला है तो वो एक मौसम आया है जब चला है गिरने के लिए। इसीलिए आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब भागें क्या, क्योंकि अगर जो नहीं भागा वो फंस गया। लेकिन अभी जो बाजार का जो 5-6 फाउंडेशनल पिलर जो खड़ा हुआ है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है। बिल्कुल
कंपनियां कमा रही हैं, आमदनी बढ़ा रही हैं, और उनके बढ़ने की वजह से अब उनको सोचना पड़ रहा है कि अब हम क्या करें। हमारी बैंकों की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है, तो ये काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, कंडीशंस, और ये एक चीज़ की वजह से बाजार नहीं चल रहा है, Sure. 5-6 चीज़ों की वजह से चल रहा है। और आप पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं जब 90s में था और मैं म्यूचुअल फंड में इसलिए लगाता था क्योंकि अगर आप 5-10 हज़ार रुपये के लिए अगर किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाइए तो भगा देता था, क्योंकि बड़ा रिस्क था, काउंटर पार्टी रिस्क था, सिग्नेचर मैच नहीं करता था, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, वो इंटरेस्टेड ही नहीं था आप में। अब अगर आप अभी डिसाइड करें तो अगले 15 मिनट में आप 0 से 1 में आप कन्वर्ट हो जाइएगा इन्वेस्ट करने के लिए। केवल आपके पास आधार कार्ड और एक स्मार्टफोन होना चाहिए। It's become very ये easy. जो आपने भागने वाली बात, सॉरी, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बिकॉज यू मेंशन टू नेम्स, आई एम जस्ट टेकिंग द लिबर्टी ऑफ, every time there used to be correction in the market in the past 20 years, 25 years, it was on account of unveiling of some scam, whether it was Harshad Mehta, Ketan Parekh, some financial meltdown, ILFS or something like that. Now the structure is so strong, अब correction का क्या आता है? COVID, Ukraine war, or maybe something like that, some global event, but not because of our texture, because earlier it used to happen that market used to fall on its own weight. You're Because right. something used to happen internally, inherently in our market. But now that fear is absolutely not there. So what can derail the market now? Is there any risk in the market that you see now No, that we it's have just seen? a global unforeseen event, something like that happen. Yeah, somewhere something happens can indirectly, directly affect, but otherwise inherently there is no risk per se as far as our infrastructure, financial infrastructure is concerned. If And you look at- 1.25 लाख करोड़ जो mention की, sorry again, ये liquidity वाला point, ये बहुत important point है शायद जी, इसको ना सब Anything which derails the earnings इसको इग्नोर growth. करते हैं। जो म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है वो मतलब इतना सब इस लेवल पे डर रहे हैं जब इतना लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का एक मैं बहुत ही डोमेस्टिक एग्जांपल देता हूँ। शैल जी, आपने कोई 3 पत्ती खेली है फ्लैश? सर सारी मतलब बातें बहुत आप सारे यही लोगों ने पूछ रहे हैं, आपने तो फिर फ्लैश, शाम को सबको क्या मालूम होगा? है फ्लैश क्या होती है? 3 पत्ती या कसिनो में देखा होगा, मोबाइल पे देखा होगा, या फैमिली में क्या होगा फ्लैश। सो आई मीन देयर इज अ हायरार्की हु विंस, कलर इज अ गुड कार्ड, देन सीक्वेंस इज अ बेटर कार्ड एंड ट्रेल इज अ इवन बेटर कार्ड। सो whosoever has a higher card will win. तो 4 जने फ्लैश खेल रहे हैं, एक के पास कलर है, एक के पास सीक्वेंस है और एक के पास ट्रेल है और चौथे के पास बंदूक है। तो कौन जीतेगा? जिसके पास बंदूक है। सो बंदूक इज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो कोई डरने की बात नहीं है, वो लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है कि दैट विल कंटिन्यू। ये बात सिर्फ दिल्ली वालों को ही समझ में आ सकती है। सर अब बार बार पूछ रहे हैं कब गिरेगा कब गिरेगा, यही आपका सवाल है बार बार। तो उसमें मेरा गाना है सर, मेरे को याद आ रहा है, तो मैं आपको खाली रिसाइट करता हूँ। किसी को भी ना समझ में तू आए, तू बढ़ता बढ़ता क्यों गिर गिर जाए, ये 90% लोग क्यों पैसे गवाए, जब सोचा समझा खूब समझ में ये आए, जो लेके गए बैठ वही तो है कमाए, ये 90% लोग बैठ नहीं पाए। यहाँ पर खेला खाली लॉन्ग टर्म का है सर, यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं यहाँ पर पैसा कमाने का है। सही बात। हमारे पास सिर्फ 3.5 मिनट बचे हैं और मेरे को 3 बातें आपसे सीखनी है। मदान साहब, आगे जबरदस्त पैसा कमाना है अगले 5 साल में, 3 बातें क्या करनी चाहिए? 3 बातों में मैं तो कह रहा हूँ 3, जस्ट स्टे देयर, स्टे पुट। भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। there will be bouts of selling, there will be bouts of correction, but those would be only correction. Sectoral rotation जरूर होगी। हाई पी स्टॉक्स में जब टोटल पागलपन, जैसे डिफेंस में ही मेंशन समथिंग लाइक दैट, मींस इतना पागलपन हो जाएगा कि it is too good to be true. I think that is the only time to take a step back or hold yourself. Otherwise, biggest thing is, see, again I relate this to the example which I gave, वो फ्लैश का। If you go to casino, हम 2-2 हज़ार करके वहाँ पे रूले में डालते हैं, एक ही बार 10,000 डालो, डरो नहीं, तो आपको डर नहीं लगेगा। सो जस्ट बी देयर, होल हार्टेडली देयर, डर डर के काम नहीं करना, क्योंकि अब जब भी हम बात करेंगे ऑल टाइम हाई पे करेंगे। बिल्कुल। केडिया साहब, क्या 3 चीजें ऐसी करें कि सर, अगली बार ऑडियंस में से कुछ लोग यहाँ बैठे हों? नहीं, पहले तो मेरे से रुका नहीं जाता है, मैं एक कविता 2 लाइन की बता देता हूँ कि बजट की डिबेट में टाइम न बर्बाद कर, नई स्टोरी ढूंढ, लाइफ को आबाद कर। क्या बात। ये डिबेट से कुछ नहीं मिलने का है कि अच्छा जो सरकार ने दिया, देखिए सर, शरीर भगवान का और धन सरकार का। धन सरकार का जब चाहेगी तब दे देगी, जब चाहेगी तब ले लेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए, तो उसमें बहस मत कीजिए। और 3 चीज शेयर बाजार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज, करेज और पेशेंस। नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट, करेज टू बाई इन ए रीजनेबल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर वर्थ, एंड पेशेंस टू होल्ड इन एडवर्सिटी। दैट्स इट।
And the most patient guy on this table is Dhirenji. So, top 3 things that everybody can do easily to create long-term wealth in the least possible effort. No, one is that, I would like to caution people that the money that you need in the next 2-3 years, take it out gradually. Everybody tells you keep investing gradually. Take it out gradually so that your key goals cannot be dependent on the state of the market. That's one. Then make sure that the money which is invested is not needed for many, many years. And be gradual about it. And don't chase the latest fad. That is investor's favorite pastime is chasing what has done extremely well. Never borrow to invest. Be prudent about it, and that's it. Right. Last 1.5 minutes remaining. I'll start off with Mr. Madan and ask you, from now on till the end of 2024, should we moderate our expectations of the returns on the Nifty? Do you think we've already made the top? We are near 25,000, or is there a lot more to go? Where do you see the Nifty at the end of the year? So I would ask this question to 100 people. If 90 will say, yes, we should moderate, then I'll be bindas. There's no need to moderate. You have to play contrary. Because already people are very conspicuous. I mean, they are very circumspect that at these levels, whether it is the right time to buy. I mean, that gives me confidence. Because everyone is waiting for that correction. Maybe out of law of averages, maybe out of level, maybe out of valuation. I think when 90% of the population, active population is on the waiting side, anything can happen. Okay, Mr. Kedia, we are already at 25,000. ये तो आ ही गया मान लीजिए. लेकिन निफ्टी कब 1 लाख होगा? सेंसेक्स सब लोग 1 लाख की बात करें. मैं आपसे पूछूंगी कि निफ्टी कब 1 लाख होगा? सेंसेक्स के पीछे उसमें 3.5 गुने का फर्क है. मेरे को क्या समझ में आता है ना मैम, बुल मार्केट इज लाइक सनशाइन. इट इज ऑलवेज देयर समवेयर. आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज नाइदर बुल मार्केट नॉर बेयर मार्केट, इट्स स्टॉक मार्केट. तो हर स्टॉक का भी अपना अपना बुल मार्केट बेयर मार्केट होता है. बी सिलेक्टिव, बी वाइज, एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए. Right. Dhiren sir, indexation benefit has been removed from real estate and also gold. LTCG, STCG has been enhanced in equities, STT on F&O. Which asset class will outperform in 2024 and 2025? No, one should not take an annual view. People don't get up on the morning of 1st of April to invest. It's a very continued thing. I think, if one has to just inspire people to do something, make sure what Mr. Kedia is saying, that be selective about things. But at the same time, be diversified. Things turn around when you least expect it. They don't come with a notice. Markets always go down by stairs, come in the elevator. So, be ready for that. And if it is not your long-term money, you will not be able to withstand the sharp decline that you witness. So, take your money out, what you need. Don't take the money out which you are unlikely to need. Be patient about it. And diversification is the only free lunch available in the market. So. All right. Well, thank you so much, dear panelists, for being with us on this edition. And I'm sure all our audiences have enjoyed this conversation as much as we did. Thank you so much to all our panelists.